Hello and welcome to this particular video where I am going to be talking to you about how to look at the markets, how to trade it in a step by step way, and how at the weekend you can do a systematic analysis and how new trader assist me in doing this breakdown. So in this video, what I'm going to do is I'm first going to take a look at what are the various factors that are impacting the market and how we can take a look at the trends and decide what we need to do ahead. Then we're going to take a look at Nifty, find out what are the supply zones, what are the demand zones, what are the levels to action the trading scenario for the next week, and then we'll be also taking a look at how bank nifty is getting impacted, because bank nifty after the RBI policy has not been really able to take the notch higher as we expected. Instead, it reversed quite swiftly, and the pressure right now is impacting both the nifty as well as bank nifty. So the selling pressure is very much there, and under this scenario, under this circumstance, how to evaluate the levels. And this particular Trump tariff is having an impact, and ever since it's been implemented on August 27th, the reason why we are not able to come up is quite evidently seen. And there are also certain interesting triggers which are there in today's session, and I am going to be talking to you and show you in this video how you can analyze it, what are the levels that you need to watch out for, and how we can take suitable market action. Now, to help that, we are going to take assistance of NeoTrader. We are going to find out what are the key levels to watch out for. We are going to find out what are the important zones that are emerging, and then at the end of the video, we'll also take a look at how to discover some actionable stocks, either on the downside or on the upside. What are the key levels that I'm watching for in those stocks, and also what are the trigger points in those stocks which I'll be waiting so that I can take suitable action. So watch till the end of this video so that you get a good insight on how the week has transpired and what should you look forward for the coming week ahead. All right, so let's get inside the video and discover what lies ahead. But then, if you're watching this video for the first time and if you're coming to our channel for the first time, I would suggest that you subscribe to our channel so that you stay notified about all such interesting content that is coming out, with the sole objective of empowering you to look at the market better, trade the market better, and trade the market smarter. So let's go inside the video and check out the market trends. और हम देखेंगे कि मार्केट को कैसे हम रीड कर सकते हैं। बट लेकिन मार्केट को रीड करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट का जो नज़रिया है फिलहाल is quite challenging, and what I am showing you right now, okay, what I am showing you right now is based on how the market is behaving, okay, and how the market is behaving right now. The market is showing absolutely no interest to go up. Correct. The market is showing absolutely no interest to go up, and the reason is that the USD INR, okay, USD INR has been weakening. So USD INR has been weakening, और जैसे कि आपको दिख रहा है ये चार्ट पे, तो ये USD INR has gone to a record low. यानी जो इंडियन मार्केट है, right, Indian market works, the equity market works diametrically opposite to the currency market. अगर currency market वीक हो रहा है, यानी currency market वीक होने का मतलब है कि प्राइजेस अभी एक डॉलर का भाव अभी अगर इंडियन रुपीस में आप देखेंगे तो इट हैज गॉन अप टू 88. सो 88.12 हैज बीन द क्लोजिंग, एंड दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पर एक वीकनेस है. इट हैज गॉन टू अ ऑल टाइम हाई, यानी वीकनिंग काफी ज्यादा हो गया है. तो एंड यू कैन सी हियर दिस इज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. तो यहां से देख के लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है फॉर सम मोर वीकनेस. सो यू कैन सी हियर, and now when you take a look at the USD INR, one of the key triggers which we are watching out. तो USD INR आने हम डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो डॉलर के लिए एक बड़ा मूव आ रहा है इन टर्म्स ऑफ द फेड पॉलिसी, ओके, जहां पर एक रेट कट की उम्मीद है, जिसकी उम्मीद बढ़ गई थी इन द रीसेंट अपडेट. नाउ एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दी फेडरल रिजर्व पॉलिसी. तो उसके बीच यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीकनिंग बढ़ गई है, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर से जो दिख रहा है, ओके, सो दिस इज योर
I'm using a concept called as Ichimoku, जो आप लोग ने देखा होगा. Yes, it is also there in Neo Trader. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर से आपको क्या दिख रहा है. यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि prices have created a new high. Okay, prices have created a new high. और यहाँ से यू कैन सी दैट दी मोमेंटम इंडिकेटर जो है, ओके, दिस इज द मोमेंटम इंडिकेटर. ऊपर प्राइस आता है, नीचे मोमेंटम आता है, और यहाँ से मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो पॉजिटिव डीआई है या पीडीआई करके जो आपको स्टॉक एनालाइजर में दिखता है, दैट इज नाउ crossed 25 and it is now slowly inching higher. So what does this signal? It signals that there is a potential weakness building up. तो ये weakness कहाँ पर रुकेगा? ओके, ये weakness कहाँ पर रुकेगा, उस पर भी मैंने थोड़ी एनालिसिस की, और वहाँ पर मैंने हेल्प लिया फिबोनाची का. तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो फिबोनाची क्लस्टर जो है, ओके, यहाँ पर देखिए ये सिमिलर चार्ट है ऑन द डेली पर भी सिमिलर सिचुएशन है. लेकिन यहाँ पर जब भी मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यूज किए, तो यहाँ पर से मुझे पता चला कि यहाँ पर जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है यूएसडी आईएनआर की, तो वीकनिंग जो है यहाँ पर रुक सकती है इन द रीजन ऑफ अराउंड 8850 टू 8859. सो फर्स्ट टारगेट अगर कोई करेंसी करता है तो उनका टारगेट होगा अराउंड 8850 टू 8859, क्योंकि यहाँ पर एक क्लस्टर फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है. एंड आई वुड से दैट यहाँ पर एक रुकावट आ सकती है. एंड आफ्टर दिस, ऑलराइट, आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टॉप इज एट 8960. तो ये दो लेवल्स बन रहे हैं इन द नियर टर्म. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी हैविंग दी आरबीआई, सॉरी, द फेड पॉलिसी ऑल्सो. सो वहां पर हमें देखना है कि हम काम कैसे कर सकते हैं. चलिए, नाउ लेट्स ब्रिंग द एक्शन बैक इनटू निफ्टी. तो ये देखकर लग रहा है कि वीकनिंग की और भी स्कोप है, और नेक्स्ट वीक कुड बी अ चैलेंजिंग वीक. एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग द एक्सपायरी डेट शिफ्टेड, और ये बार next month say the nifty is going to expire on Tuesday, so it's going to be an interesting scenario. So markets are poised for a lot of market action, और उस market action को हम लोग कैसे decode करेंगे हम देखने वाले हैं in the few minutes from now. All right, so I am going to be discussing everything step by step. After that we will take a look at how to answer your queries. So यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है ये मूवमेंट है यूएसडी आईएनआर का. तो अभी हम यही दृश्य जो है ये हम लोग निफ्टी में लगाएंगे, ठीक है. तो ये निफ्टी का सिनारियो कैसे बन रहा है. सो हमेशा मैं निफ्टी स्पॉट पे प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि निफ्टी स्पॉट जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, निफ्टी स्पॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड यू कैन सी हियर that if you have been watching my videos on a regular basis on the YouTube channel, I have been using these particular support lines which have been drawn based on the GAN levels. And you can see here that निफ्टी ने एग्जैक्टली रैली दिया टू द गैन जोन. ओके, ये वीकली चार्ट है. तो यहाँ पर इट रैली टू द गैन जोन, एंड यहाँ से इट हैज नाउ स्टेप बैक. सो नाउ यू कैन सी हियर द पोटेंशियल. सो ये जो 24,500 का जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है. एंड इफ इट टेंड्स टू गो लोअर देन इट कुड ट्रिगर सम more pain for us. And what is that level? That level is 24,050 या 24,000 समझ लीजिए. तो 24,000 का एक स्कोप बन रहा है अगर 24,500 टूट गए तो. सो नाउ इफ आई वेर टू रिमूव ऑल ऑफ दिस, ओके, ये सब मैं अभी निकाल देता हूं, ठीक है. तो अभी देखिए, अभी ये चार्ट हमसे क्या कह रहा है. तो देखिए, ये एक कोशिश की ऊपर जाने के लिए और वहां से एक गिरावट आ रही है. नाउ हाउ टू रीड दिस इन अ बेटर वे. तो ये तो हमें समझ में आ गया, और यहां से हमें एक कोई क्लैरिटी मिल रही है. नाउ इफ यू सी हियर, इफ यू शिफ्ट टू द डेली चार्ट्स, ऑलराइट, सो डेली चार्ट्स में ये एक जो लो है, यू कैन सी दैट ये एक लो था, ये एक लो था. अगर आप सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे सप्लाई जोन डिमांड जोन का, तो यहां पर आपको एक डिमांड जोन नजर आ रहा है. तो ये डिमांड जोन को होल्ड करना पड़ेगा. बट लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की जो भाषा है वो ये कहती है कि अगर कोई सपोर्ट, देखिए ये एक बार कोशिश किया, ये दोबारा कोशिश किया, ये तीसरी बार है. ओके, यहाँ पर अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के और तौर पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर भी बन चुका है. नाउ
this particular support, if you see over the last 4 months, has become very important. So अगर ये लो टूट जाए then it could spread lot of pain. तो ये तो एक गैप सपोर्ट आ गया, ये गैप सपोर्ट आ रहा है आपका, फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा अराउंड 24,200 का, फिर होगा आपका अराउंड 24,000। तो ये तो लेवल्स बन रहे हैं ऑन द निफ्टी स्पॉट विच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू नाउ गो एंड चेक आउट कि स्टॉक एनालाइजर में हमें क्या पता चल रहा है। तो यहाँ पर मैं चलूंगा इनटू नियो ट्रेडर, और नियो ट्रेडर के अंदर हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम ट्रैक कर सकते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो हियर इनटू नियो ट्रेडर, गो इनटू द मल्टी डे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट हफ्ते के लिए देखना है, राइट। सो अभी मैं क्या देख रहा हूं कि बेयर स्कोर अच्छा खासा बढ़ गया है, राइट, एंड द करंट निफ्टी इज ट्रेडिंग वेल बिलो द टीएस एंड केएस। सो यहाँ पर आपको टीएस और केएस का कॉन्फ्लुएंस है, ओके, विच इज द टेंकन सेन एंड कीजुन सेन, ऑलराइट। सो अगर आपको इचिमोकू थोड़े डिटेल में जानना हो तो इचिमोकू का एक बहुत अच्छा कोर्स है इनसाइड द नियो ट्रेडर प्लेटफॉर्म बाय डॉक्टर नारायण विच इज अवेलेबल, ओके। तो अगर आपको कोर्स खरीदना हो तो यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट दैट, बिकॉज दैट कोर्स विल रियली गिव यू इनसाइट्स ऑन हाउ टू रीड द इचिमोकू लाइंस। क्योंकि मैंने जो आपको यहाँ पर बताया, ओके, ये जो इचिमोकू है यहाँ पे, इसके अलग अलग लाइंस है, ये लाइंस का एक मीनिंग होता है, और ये मीनिंग काफी अच्छी तरह से हम नियो ट्रेडर के अंदर देखते हैं, वो हम देखेंगे व्हेन वी गो टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। बट देन राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द निफ्टी इज टेलिंग अस, ओके। सो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे कि यहाँ पर सिग्नल्स तो शॉर्ट के आ रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू गो एंड टेक अ लुक at the levels, okay, if you go and take a look at the levels, what do you see here? You see here that the prices, okay, that the prices are well below the pivot, okay, the prices are well below the pivot but they are not below L3। तो अगर हमें काम करना हो, okay, अगर हमें काम करना है, right, ये तो कहने की बात नहीं है, बट देन व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद द करंट लेवल्स, सो व्हाट आर यू लुकिंग एट? यू आर लुकिंग एट दी दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जोन क्या है? दिस इज द नो ट्रेड जोन। सो फिलहाल अगर आपको छोटा सा ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बिकवाली आ गई तो यहाँ पर L3 तक एक स्कोप बन रहा है। अगर खरीदारी करना भी है तो 24,600 के बाद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि 24,600 के बाद ही एक पॉसिबिलिटी बनता है टू द अपसाइड। So now what we have to consider is that based on the current market scenario, current geopolitical news flow, the market is a sell on rise market, all right। So market एक sell on rally mode में है। जब ये sell on rally mode में है तब जाकर हमें एडवेंचरस लॉन्ग नहीं करना है। सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। Yes, there are certain stocks where you can do long, and that is what we will be discovering at the end of this session. But then अभी हम लोग देखते हैं कि ये particular scenario जो है, ये मुझे बन रहा है कि ये levels क्रॉस करना पड़ेगा। So now एक सपोर्ट आ रहा है closer towards the 24,300, और जैसे कि मैंने कहा कि 24,100 is again an important. So 24,250, 24,100 is based on the pivot। ऊपर की तरफ 24,600 क्रॉस कर दिया, सो देन 24,800। सो ये एक लेवल्स मानकर चल सकते हैं फॉर द कमिंग वीक, because market is going to face a lot of volatility because the geopolitical news flow, especially after the Trump tariff, और उसके ऊपर जो कंफ्यूजन बढ़ गया है, एंड ऑल्सो डोमेस्टिकली द जीएसटी रेट कट जिसके बारे में बातचीत हो रही है, वो सबको कंबाइन करते हुए हमें और ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। सो वन शुड बी अ लिटिल केयरफुल, एंड द प्रेशर इज डेफिनेटली टू द डाउन साइड। सो it's a sell on rally market. So if you're trading index, then this is how you got to approach it. Now, taking this particular scenario, if I had to find out a suitable level to action, so I always go in for a cluster, क्योंकि फिबोनाची क्लस्टर जो है वो मेरे सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स को काफी ताकत देती है, एंड दैट इज व्हाई I go into this consolidated view which is there inside NeoTrader,
और यहाँ पर जब भी आप जाएंगे यू कैन सी हियर दैट these are some of the important levels that you can watch out for. So ये एक इंट्राडे, मल्टी डे और पोजिशनल उसके बेसिस पे आपको बताता है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ओके, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच एक टाई अप कर रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टाई अप जो बन रहा है, ओके, यू कैन सी हियर दिस इज H5, ये हो गया आपका H3 ऑन द मल्टी डे. ऑलराइट, एंड यू कैन से ऑलमोस्ट वहां से 50 पॉइंट दूर, नॉट टू फार, इज दी पोजिशनल. तो यहाँ पर जो है 600 का लेवल जो है, यहाँ पर एक आपको एक छोटा सा क्लस्टर मिल रहा है. यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बिटवीन इंट्राडे एंड मल्टी डे, और यहाँ पर पोजिशनल पे 24,650. सो एनी पोटेंशियल रैली इन द निफ्टी स्पॉट क्लोजर टू दिस रीजन एंड फिजलिंग आउट फ्रॉम देयर, वहां से अगर प्राइजेस फिजल आउट होने लगे then it could be a very good rally to sell into. All right, and now similar scenario you can also see on the downside, और आप देख सकते हैं कि कहां पर ये levels मिल सकते हैं, and that makes it a very interesting case for you. So you can see here that at the current juncture यहाँ पर ज़्यादा आपको मिल नहीं रहा है because the levels are far above, so you are not getting any close quarters, but the closest which I can see, okay, the closest which I can see is the L3 here, okay, the intraday combined with the L3 of the multi-day. So this is where I am getting a combination. So मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इससे नीचे और जा सकता है. So something we'll watch out for, and we will take a call in the coming sessions, and we will decide what we really need to action. So these are some of the supply zones and demand zones which I will be tracking in the coming session, because the markets are definitely in a challenging mode. Okay, markets are definitely in a challenging mode. So अगर मुझे देखना है कि immediate cluster level पे, तो currently Nifty is at 24,426. All right, so I can see that there is a cluster zone here, not this one. Okay, let me just move this. So this is not the cluster zone. The cluster zone is on top. So you got two cluster zones here as far as the downside is concerned. तो आप समझ के सकते हैं कि 24,260 से लेके 200. Okay, here there are two zones. So wherever there are multiple numbers tying up, in short, wherever there are multiple numbers tying up, those will be the area which you should consider as a important support zone और रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन या डिमांड जोन. तो रेजिस्टेंस है तो वो सप्लाई जोन बन गया, अगर डिमांड जोन है तो आपका सपोर्ट बन गया. सो नाउ दिस इज द सिनेरियो ऑन द निफ्टी. नाउ लेट्स मूव इनटू बैंक निफ्टी. सो व्हेन यू टेक अ सिमिलर लुक एट बैंक निफ्टी, ओके, व्हेन यू टेक अ सिमिलर लुक एट बैंक निफ्टी, ओके, तो बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट लगाते हैं. ऑलराइट, और बैंक निफ्टी को जब भी आप गौर करेंगे तो यू कैन सी हियर that bank nifty has been in consolidation since April. Okay, ये आरबीआई पॉलिसी के पहले वाले आरबीआई पॉलिसी से भी एक साइडवेज फेज से गुजर रहा था. So if you were to actually hide the Ichimoku, all right, and if you just put just a channel here, हल्का सा अगर आप एक चैनल डाल देंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे चैनल से बाहर आ गया है, राइट. So what does this indicate? It indicates that the prices were in some consolidation. Okay, और इसके आगे अब चले गया है. Okay, इसके आगे नहीं, इसके इसके अब नीचे चले गया. You can see here, this was a kind of movement, and now there is a breakdown. So any rally towards the 54,500, 55,000, वहां पर एक सप्लाई आ सकता है. तो ये जो सपोर्ट था अब बैंक निफ्टी पे टूट गया है. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पोटेंशियल हियर? सिंपल, यहाँ पर एक गैप सपोर्ट बन रहा है विच इज अराउंड द 51,500 टू 52,000. सो यहाँ तक एक विंडो खुल जाता है. सो अगर आप चैनल टारगेट भी लेंगे तो चैनल टारगेट भी एक 3,000 पॉइंट का आपको एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. नाउ वी गॉट टू सी वेदर दिस मंथ
हिस्टोरिकली, ओके, हिस्टोरिकली ये सितंबर का मंथ थोड़ा पॉजिटिव रहता है, बट देन considering the market scenario, considering the market trends, we got to see what the trends will unfold, because even here the momentum indicator जो है, it is showing a negative sign, right? Similar to what you saw in the index, you can see here that यहाँ पर हम आपको सारा levels देते हैं, and you can see here that the MDI which is the negative DI, okay, negative DI जो है वो आपको बता रहा है कि ये एक नेगेटिव सिनेरियो में चले गया है। मल्टी डे पे भी एक दिस ऑल लेवल्स जो है, एमडीआई जो है, इट्स अ नेगेटिव डीआई, ये सब यही कह रहे हैं कि एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, which is the nifty. Now let's see on the bank nifty. So on all the time frame, okay, after a long time you are seeing a bearish pressure. इसके पहले जब भी हमने वीडियो बनाया था, right, and I had shown to all of you कि we had spoken about the negative. You can see here candlestick score is -80 on the intraday. ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए मल्टी डे में भी ये बेरिशनेस आ गया जो ये पहले नहीं था, एंड शॉर्ट सिग्नल्स आर स्प्रिंगिंग अप एवरीवेयर. Now, if I go and take a look at the negative DI, you can see here that even on the positional front, the negative DI is increasing. So what does that mean? It means that the negative DI is dominating. तो यहाँ पर जो है ADX, PDI, MDI, they are tracking the momentum indicator. Okay, they are tracking the momentum indicator, और momentum indicator जो है वो हमसे कहता है कि what can happen to the market and how you need to position yourself. And ये जो जब ADX is talking about the strength, so this all these things I have discussed in my course where I have shown you how to trade with the ADX, how to trade with the RSI. तो ये सब मैंने कोर्स में कवर किया है. अगर आपको जानना हो तो you can connect with our team and we'll tell you exactly how you can access that course. But now coming back to ये जो ADX PDI है, आपको ADX और PDI रीड करना है when you want to go long, आपको ADX और MDI रीड करना है when you want to go short. Now when you take a look at the market scenario and when you take a look at the kind of strengthening which you are seeing, तो यहाँ से साफ जाहिर है कि बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वीक, निफ्टी इज ऑल्सो वीक. सो ओवरऑल द ट्रेंड्स आर इंडिकेटिंग नेगेटिविटी. सो एज वी आर हेडिंग इनटू द कमिंग session, okay, as we are heading into the coming session, we are going ahead with a negative bias. Okay, नेगेटिव बायस बहुत एक बायस जो है मार्केट में, जो बायस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो व्हाई? क्योंकि मार्केट का बायस हमको बताता है कि आपको किस टाइप के स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए. ऑलराइट, जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा, यू विल ऑलवेज हैव अ चैलेंज. सो एज यू कैन सी हियर दैट यू कैन सी दैट द नेगेटिव डीआई इज इंक्रीजिंग, राइट. और नाउ जब भी आप देखेंगे ऑन द मल्टी डे, ओके, आरएसआई जो बहुत लोग जानते हैं, ये आरएसआई जो है वो 30 के नीचे चले गए ऑन द मल्टी डे, विच इज ऑल्सो अ लिटिल डेंजरस साइन. अभी हम निफ्टी पर भी देख लेते हैं, निफ्टी में आरएसआई क्या चल रहा है. तो ये सारा जो पेज है, ये स्टॉक एनालाइजर का पेज, आपको पूरा निफ्टी रहने दीजिए, बैंक निफ्टी रहने दीजिए, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक रहने दीजिए, यू कैन गेट द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस डिटेल इन दिस एट अ ग्लांस. ऑलराइट, यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर जो है इसकी भी आरएसआई, इट हैज क्रॉस 40 बट इट हैज नॉट क्रॉस. सो यस, बैंक निफ्टी हैज बीन वीकर. तो बैंक निफ्टी पहले वीक हुआ, उसके बाद निफ्टी वीक होने लगा है. बट देन व्हेन यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर जो मोमेंटम है नेगेटिव डीआई का जो है, हमें एडीएक्स से कंफर्मेशन आ गया है. अभी आरएसआई भी 40 के नीचे चले गया है, राइट. तो 60-40 इज अ न्यूट्रल जोन. ये भी चीज मैंने कवर किया है मेरे आरएसआई वर्कशॉप में, एंड ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल to the neo trader family members who are there with us for a longer duration. So that's the whole idea, friends, कि जब भी आप आते हैं and when you are part of the weekend analysis, you get to learn and read about the market. You get to see market में क्या क्या पैरामीटर देखने हैं, कैसे देखने हैं, क्या क्या देखना है, and how to get a understanding of what are the important triggers that are ruling the current market sentiment. So ये हमें एक इंडेक्स के बारे में जानकारी मिल गई. So now if you go and take a look at the sector, all right, so ये रहा सेक्टर.
तो डे में तो ऐसे लग रहा है, बट हमें चाहिए कि पूरे हफ्ते के लिए कैसे दिखे। तो आई गो टू द मार्केट व्यू पेज, ये आप डैशबोर्ड में जाएंगे, मार्केट व्यू में जाएंगे, तो आपको ये दिख जाएगा। सो ऑन दिस सेक्टर पेज, if I just change it to the week, right, you can see here, this is the scenario of the week. Now पूरे महीने बीत गए, बट लेकिन यू कैन सी हियर दैट बारिंग ऑटो और हल्का सा एफएमसीजी आफ्टर द जीएसटी न्यूज, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर बीन इन रेड, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर इन रेड। यानी यहाँ पर एक बिकवाली दबाव की जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। एंड ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी कॉशियस एज वी गेट इनसाइड द मार्केट। यस, ऑल ऑफ अस लाइक टू बाय ऑन डिप्स, but then the kind of dip which we are seeing in the market right now is not a very comfortable dip, all right, so we have to be a little careful, और इसके लिए हमें थोड़ा carefully choose करना पड़ेगा। so now again I go back and see कि पिछले हफ्ते खाली FMCG में था और यहाँ पे था, तो we'll pick up maybe the top two सेक्टर्स फ्रॉम द डाउन साइड, ऊपर टॉप टू, नीचे टॉप टू में पिकअप करता हूं और उसमें मैं कोई स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो ऊपर तो सिर्फ ग्रीन में सिर्फ एक ही है, एफएमसीजी, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है पीएसयू बैंक एंड रियलिटी। सो ये है स्टॉक्स मेरे पास, ऑलराइट, तो ये स्टॉक्स है मेरे पास। सो नाउ what I do inside NeoTrader is that inside NeoTrader there is a particular place called as query window, okay। तो पीएसयू बैंक है, रियलिटी है और एफएमसीजी है। चलिए इन स्टॉक्स में से हम लोग स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं अभी हम देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेरी विंडो का पेज जो है ये मुझको बताता है कि ये स्टॉक्स में हलचल कहाँ क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ कितने हद तक हो रहा है, तो विद इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पेज जो है क्वेरी विंडो का, तो यहाँ पर मैं आई विल गो हियर एंड आई विल सेलेक्ट the stocks, okay, so for example I've got here all the kinds of stocks here, so you can see here there is consumables, consumer goods, ये consumer stocks है, ये सारे consumer stocks है। so ये मैं पूरे निफ्टी एफएनओ के स्टॉक्स लूंगा। यहाँ पे आई कैन सी हियर that there are 26 records, so I am going to take all the 26 records, all right, और इस 26 records का मैं एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वॉच लिस्ट, ऑलराइट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर there are certain other watch lists which I will delete so that I can show you कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में हम काम कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एक्सरसाइज गाइस, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कंज्यूमर या एफएमसीजी, ठीक है, यहाँ पर मैं एफएमसीजी डाल देता हूँ। मैंने मेरा वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया, ऑलराइट, और ये सारे स्टॉक्स को मैंने वॉच लिस्ट में डाल दिया। तो अब मेरे पास एफएमसीजी के वॉच लिस्ट है जो मैं नियो ट्रेडर के अंदर कहीं पर मैं एक्सेस कर सकता हूं, ऑलराइट। आई कैन एक्सेस दिस एनीवेयर इनसाइड नियो ट्रेडर। सो मैं चलूंगा, ऑलराइट, एंड व्हाट आई विल डू नाउ इज ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स को आई विल गो टू माय डैशबोर्ड, ऑलराइट। ये मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा, ओके। आई वेंट इनसाइड माय डैशबोर्ड एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स जो है, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स जो एफएमसीजी है, सो मैंने एफएमसीजी सेलेक्ट किया, ऑलराइट। सो ये एफएमसीजी स्टॉक्स में से मैं चलूंगा इनटू माय वेल सेट बुलिश और वेल सेट बेरिश। ये वेल सेट बुलिश और वेल सेट बेरिश जो है ये आपको बताता है कि कौन से स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। तो जो एक ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, ठीक है, तो उनकी जो जर्नी की शुरुआत है, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम इंट्राडे, ओके, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम इंट्राडे। पहले आप लेते हैं, फिर वो ट्रेड इंट्राडे से ही मल्टीडे होता है। तो यहां पर जो है ये आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत कहां से करना है, एफएमसीजी मेरा सेक्टर हो गया, और उसमें से मैं जाकर देखूंगा कि कौन से स्टॉक्स में काम हो रहा है। सो आई कैन सी हियर that I have got 3 stocks here, DMart, Britannia, ITC। So अगर मैं देखूं DMart और Britannia और ITC तो 3 स्टॉक्स है। तो अगर मैं चुनना चाहता हूं तो मैं चलूंगा और देखूंगा कि DMart मुझे स्टॉक एनालाइजर में क्या बोल रहा है। तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द साइड एरो
एंड आई गेट द स्टॉक एनालाइजर। तो ये स्टॉक एनालाइजर खोल लूंगा डीमार्ट का और पता करूंगा कि डीमार्ट का हालचाल क्या है एंड वेदर इट इज गुड टू गो, क्योंकि यहाँ से तो आ गया है। अगर मुझे और छानबीन करनी है, अदरवाइज वेल सेट बुल में आ गया है उसका मतलब है कि आप इस पर काम कर सकते हैं। सो नाउ इफ आई गो एंड इवन टेक अ लुक एट डीमार्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग पर्पज, आई कैन सी हियर दैट इसका बुल स्कोर भी अच्छा है, कैंडल स्टिक स्कोर भी अच्छा है। सो नाउ बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिचुएशन आई विल सेलेक्ट डीमार्ट एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर गोइंग लॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इसमें ये 2 दिन से चल रहा है, मार्केट्स वेर गोइंग डाउन बट डीमार्ट वाज गोइंग अप। सो इफ आई वांट टू बाय देन डीमार्ट विल बी माय फर्स्ट बेट। सो एक स्टॉक हमारा सेलेक्ट हो गया डीमार्ट। नाउ स्टॉक सेलेक्ट हो गया है तो हम न्यू ट्रेडर में क्या कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन। सो व्हाट आर वी आइडेंटिफाइड? वी हैव आइडेंटिफाइड डीमार्ट एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट। पहले हमने सेक्टर देखा, पहले हमने मार्केट देखा, फिर हमने क्या किया, हमने सेक्टर को देखा। नाउ सेक्टर में हमने देखा कि डीमार्ट जो है इट इज इन अ वेल सेट बुल कैटेगरी। तो यहां से हम लोग एक स्टॉक चुनेंगे, टोटली 3 स्टॉक्स चुनेंगे। ओके, नाउ एक डीमार्ट चुन लिया फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस ऑन द लॉन्ग साइड। व्हाई? बिकॉज 2 दिन से चल रहा है और नाउ इफ इट हैज टू परफॉर्म ऑन मंडे, ओके, इफ इट हैज टू परफॉर्म ऑन द नेक्स्ट वीक, मंडे से लेकर, तो हमें चाहिए कि उसकी जो हालचाल भी ठीक रहे। सो नाउ अगर आपने डाल दिया, ओके, फॉर एग्जांपल आपने उसका एक नजरिया के लिए हम उसका चार्ट भी देख लेते हैं, तो देखिए उसका जो चार्ट जो है काफी बढ़िया है। इट हैज बीन एबल टू होल्ड अबव इट्स हाइस और यहाँ पर कंसोलिडेट होकर एक ग्रीन कैंडल भी बनाया है। तो मतलब ये मूवमेंट भी काफी अच्छा है और ये हमारे वेल सेट बुलिश में भी है। सो आई विल पिक डीमार्ट एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर, which is the next sector we said reality on the sell side, reality and PSU bank. So again I will go into the query window और यहाँ पर मैं जाऊंगा, ओके, और यहाँ पर जो रियलिटी का है, ओके, कंस्ट्रक्शन, राइट। सो यहाँ पर जाकर हम कितने स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स हैं, तो हम इस 10 स्टॉक्स के एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। ऑलराइट, सो विल मेक अ वॉच लिस्ट एंड वी विल से कंस्ट्रक्शन और इसका वॉच लिस्ट बनाएंगे और ये वॉच लिस्ट में ये सारे 10 स्टॉक्स को हम डाल देंगे। ऑलराइट, नाउ आई विल गो इनटू द डैशबोर्ड अगेन। तो मेरा बाई तो सेलेक्ट हो गया है डीमार्ट। अभी मैं जाऊंगा और यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन पे मैं जाकर देखूंगा इनटू द वेल सेट बेयर। सो कंस्ट्रक्शन में वेल सेट बेयर में इतने सारे नाम आ गए हैं, कैन सी हियर देयर आर लॉट ऑफ नेम्स आउट हियर। ओके, वहां पर चॉइसेस कम थे, यहाँ पर चॉइसेस ज्यादा हैं। सो ये वेल सेट बेयर का जो कैंडिडेट्स है यहाँ पर स्टॉक ज्यादा है। तो कभी ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें थोड़ी और छानबीन करता हूं एंड फॉर दैट व्हाट आई डू इज आई गो टू माय एडीएक्स ट्रेंड्स पेज, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें मोमेंटम रहे, इसमें रफ्तार रहे टिल दी एंड ऑफ द लास्ट वीक। सो हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए कि कोई डेली चार्ट में इसमें रफ्तार बताए। सो यहाँ पर on the ADX trend page I am now going to take the construction sector which I have created and I will see is there any stock that is showing some movement here to the upside, sorry, to the downside. So now I am going to go on the daily, okay, और डेली में जब भी मैं जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पर मुझे 3 स्टॉक दिख रहे हैं। तो पावर ट्रेंड बेरिश में है, ये एक प्रोप्राइटरी न्यू ट्रेडर अप्रोच है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा टू एनसीसी। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस होगा टुवर्ड्स एनसीसी क्योंकि यहां पर एक पावर ट्रेंड बेरिश है, तो ये मेरा एक स्टॉक हो गया ऑन दी डाउन साइड। तो जब भी यहां पर कोई स्टॉक दिख जाए तो उस स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो नेक्स्ट वीक के लिए ये एक एनसीसी बन रहा है फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम विच कैन रन फॉर अ कपल ऑफ डेज। अगर टाइम फ्रेम घटा दें, ओके, तो मुझे कुछ मिल रहा है 30-60 डेली। ओके, ऑन द 60 मिनट्स आई एम गेटिंग आरवीएनएल। सो आरवीएनएल इज अ शॉर्ट ऑन 60 मिनट्स, सो इट कैन बी एन इंट्राडे एंड मल्टी डे प्ले, बट एनसीसी इज नेसेसरली अ मल्टी डे प्ले। ऑलराइट, क्योंकि वो डेली में आ गया है तो यहां पर आप मल्टी डे का काम भी कर सकते हैं। सो दिस वे आई कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स
फ्रॉम द बास्केट ऑफ सो मेनी स्टॉक्स। इतने सारे स्टॉक्स है, बट कौन से स्टॉक्स में मुझे पावर ट्रेंड बेरिश मिल रहा है, वो मुझे एडीएक्स ट्रेंड्स पेज से मिलेगा। ऑलराइट, सो नाउ द थर्ड सेक्टर, ओके, वी हैड डीमार्ट, वी हैड एनसीसी, वी हैड आरवीएनएल। तो चलो और भी स्टॉक्स देखते हैं, और उसके बाद चाहिए तो उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी क्या हो रहा है, नियो ट्रेडर आपके और मार्केट के बीच जो फासला है उसको कम कर रहा है, एंड थ्रू सिस्टमैटिक एनालिसिस you are able to do that. So how to read ADX, how to use RSI, how to use the particular stock analyzer, इन सब के वीडियोस है इनसाइड नियो ट्रेडर। इन सब पे मैंने डेडिकेटेड कोर्सेज भी बनाए हैं, डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, और ये सारे चीज में वर्कशॉप्स में कवर करते रहता हूँ। सो नाउ आई विल नाउ अगेन गो बैक इनटू द क्वेरी विंडो। ओके, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द पीएसयू बैंक्स। ऑलराइट, सो पीएसयू बैंक पे चलेंगे, और पीएसयू बैंक्स में हम लोग ये पीएसयू बैंकिंग को हम लोग ऐड करेंगे इनटू अ वॉच लिस्ट। ऑलराइट, तो पीएसयू बैंक मैंने ऐड किया इनटू द वॉच लिस्ट, और ये पीएसयू बैंक में मैंने डाल दिया ये सारे स्टॉक्स को। तो नाउ आई विल गो अगेन इनटू द डैशबोर्ड, एंड आई विल सी वेदर वेल सेट बेरिश में क्या मुझे स्टॉक्स मिल रहा है फ्रॉम द पीएसयू बैंक। ओके, करेक्ट। अभी तक आप सबको समझ में आया होगा प्रोसेस क्या है। वेल सेट बेयर में चले गया, और देखिए ये सारे पीएसयू बैंक्स यहाँ पर आ गए हैं। ऑलराइट, कोई 5 दिन से चल रहा है, कोई 3 दिन से चल रहा है, कोई 4 दिन से चल रहा है, तो ये ऐसे सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ गए। सो अगेन आई विल गो बैक टू माई ADX trends page, right? So you can see here that inside NeoTrader, we are analyzing so many stocks, we are analyzing so many trends just at the click of the button. तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, नॉट अ प्रॉब्लम, सो वी टेक केयर ऑफ यू एंड वी इंश्योर दैट टेक्निकल एनालिसिस की जो भाषा है आपको सरल वे में समझा दे। और यू कैन सी हियर दैट नाउ अगर मैं बताऊं कि चलो मुझे बताओ कि पीएसयू बैंकिंग में से डेली में क्या बन रहा है, 30 में कुछ नहीं है, 60 में कुछ नहीं है, डेली में कुछ बन रहा है, यस डेली में बन रहा है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मुझे यूनियन बैंक को शॉर्ट कर सकता हूं। सो दैट इज हाउ। सो व्हाट डू वी हैव हियर, सो स्टॉक्स हमारे तैयार हो गए। पहला था लॉन्ग में डीमार्ट, फिर आया आरवीएनएल, फिर आया एनबीसीसी, और चौथा आ गया यूनियन बैंक। राइट, सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, वी डिड सिस्टमैटिक एनालिसिस, we took the help of NeoTrader, we analyzed so many trends, and we got the stocks which we can track for the coming week. So this is how you can do systematic analysis with NeoTrader, read the market trends। और ये जो है ये हम लोग ने किया है with the help of charts। yes, we definitely got a perspective from the charts कि charts काफी कुछ हमसे कहती है, but then the problem is that we are not able to understand what the chart is telling us, right? So either आप समय spend कर सकते हैं, या आप थोड़ा समय नियो ट्रेडर को देंगे तो नियो ट्रेडर आपको आसानी से बता देगा। एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर पेज कॉल्ड एज अ डैशबोर्ड इज समथिंग विच आई ऑलवेज कीप लुकिंग एट थ्रू द डे। पूरा दिन किसी को भी पूछना नहीं है, ये पेज आपको बता देगा कि कहां पर एक्शन हो रहा है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है, और आज क्या चल रहा है वो आपको नीचे हीट मैप में दिख जाएगा। तो यही सब चीज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं इन आवर सेशंस, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू come across and tell you exactly what to do. So as we are एक समराइज कर देता हूं आज का जो सेशन हुआ है। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, हमने पहले मार्केट को रीड किया करेंसी के ओर से। ओके, करेंसी की लेंस से हमने मार्केट को रीड किया, और हमने देखा कि मार्केट काफी वीक हो गया है, एंड मार्केट्स को अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड इफ यू आर लुकिंग टू गो लॉन्ग ऑन डिप, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। क्यों? क्योंकि करेंसी वीक हो गया है, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स विच हैज बीन ब्रोकन बाय द निफ्टी, बाय द बैंक निफ्टी। राइट, निफ्टी इज टेस्टिंग सपोर्ट्स, bank nifty has broken supports,
or the kind of momentum which is indicating that there could be more pressure to the downside. So ये सब मद्देनजर रखते हुए we have to take a very holistic view, and that is why you have to have a mix of long and short. And then we did this sector analysis, right? जब भी हमने sector analysis किया, हमने क्या देखा? हमने देखा कि over the entire month the sectors have majority have been on the weaker side. Last हफ्ते सिर्फ FMCG was on the positive side largely because of the GST regulation. उसके अलावा बाकी सारे sectors weak थे. So that is why we decided to select some sectors. Normally the approach should be take top two sectors that are performed in the week from the upside, from the downside नीचे से दो ले लेना और उसमें से स्टॉक सेलेक्ट करना. और स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस हमने कैसे किया? वी टुक द हेल्प ऑफ वेल सेट बुलिश बेरिश, विच इज आवर प्रोप्राइटरी वे नाउ टू डू द आइडेंटिफिकेशन, एंड देन कंफर्मेशन और एग्जीक्यूशन का जो अप्रोच है वो मैं हमेशा आपके साथ वर्कशॉप में शेयर करता हूं. और ये सारी चीजें इज ऑलरेडी कवर्ड एज पार्ट ऑफ वेरियस मटेरियल विच वी आर गिविंग ऑल आवर मेंबर्स. सो अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एंड विल असिस्ट यू. एंड देन वी केम आउट विद अ सेट ऑफ stocks, right? We came out with a set of stocks that we need to look at in the coming week. तो ये stocks कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे चलेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे in the upcoming sessions. But then this is what I wanted to share with you. Well, now you have taken a look at the market scenario. You have seen how the USD INR has been weakening. You have seen how it is impacting the equity markets, and how we are all reacting to what is happening on the floor. So now with the market scenario in a very grim situation, we got to wait for some tailwinds to emerge, and what could be those possible tailwinds, and whether it could be domestically or internationally. It's going to be a pot boiler emerging in the coming week. And let's get inside the market scenario, and let's ensure that we are able to use the cues that have been provided in this particular video and use it to the best of our abilities. Yes, NeoTrader is always there with you, and if you're not explored NeoTrader, then this is the moment now. So the link is attached with this video, and if you liked what we discussed, all you got to do is click on that link and register. And also, if you liked the content that we shared in this video, do give a like on this video, because your love and support is what keeps us bringing back on the internet, on YouTube, and tell you exactly how to look at the markets and how to trade it in a much smarter way. Thank you for watching. I'll catch you in the next one.